आज हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर काउंट के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ए नॉमिनल काउंट विच रिकॉर्ड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स ऑफ रेवेन्यू नेचर related to current year only. This account is based on the accrual basis of accounting. This account does not start with any balance but ends with surplus or deficit. Again, it is a nominal count which record all expenses, losses and income and gain of revenue nature only relating to current year. This account is based on accrual basis of accounting. This account does not start with any balance but it ends with surplus or deficit. Now we will start features of income and expenditure account. First of all, nature of this account. Nature of income and expenditure account is nominal account. Second, all expenses or losses are shown on the debit side of and all income and gains on the credit side. Income and expenditure account does not start with any balance but it ends with surplus or deficit. It records revenue items relating to current period only. It is based on accrual basis of accounting. It records both cash and non-cash items related to current period only. It does not record capital items. Again, features of income and expenditure account. First feature is nature. What is the nature of income and expenditure account? The nature of income and expenditure account is nominal account. This is generally asked in the examination. Second feature, all expenses and losses are shown on the debit side and all income and gain are shown on the credit side. Third feature है income and expenditure account does not start with any balance but ends with surplus or deficit. Income and expenditure account किसी बैलेंस से स्टार्ट नहीं होता लेकिन इसका एंड सरप्लस और डेफिशिट से होता है. इट रिकॉर्ड रेवेन्यू आइटम रिलेटिंग टू करंट पीरियड ओनली. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रेवेन्यू आइटम से रिकॉर्ड करता है जो करंट ईयर से रिलेट करते हैं. अगर कोई पास्ट ईयर का है या फ्यूचर ईयर का आइटम है दैट इज़ नॉट टेकन. ओनली करंट ईयर revenue items is taken in the income and expenditure account. It is based on the accrual basis of accounting. Note, what is the basis of accounting of income and expenditure account? Accrual basis of accounting. This is generally asked in CBSE examination. Now next feature, it record both cash and non-cash items relating to current period only. What type of item it record? Both cash and not cash items relating to current period only. It does not record future period item. It does not record past period item. It does not record capital items. That is, it does not record capital item. What type of item not recorded by income and expenditure account? So capital items are not recorded by income and expenditure account. Now we have format of income and expenditure account. So again, students, income and expenditure account is a revenue account which is based on the accrual basis of accounting. It is the nature of this count is nominal count. It has two sides. Left hand side is debit side, that is expenditure side. Right hand side, that is credit side, that is income side. Now, first of all, we will start with income side items by subscription. So you must know what is subscription. This is the amount received by the NPO from its members annually relating to current years only. It means we have to write subscription here on the basis of revenue. It is a revenue nature only. By entrance fee, revenue part only. By entrance fees, revenue part only. We must know what is entrance fees. Entrance fees is a type of fees
taken by the not-for-profit organization at the time of entry of new member in the organization. It is also known as admission fees. In schools, it is also known as admission fees. If it is written कि 40% is capitalized, then we have to write entrance fees 60% only. In receipt and payment count, we can take 100% entrance fees on the receipt side. If it is written कि 40% is capitalized, so we have to write only 60% in income and expenditure count on its credit side. By general donation. General donation means donation that are given by donor for not any no condition is attached. If no condition is attached for the amount given by the donor to not for profit organization, that is general donation. That is always taken as revenue nature. If sometime a large amount is given, then we can take it as capital item. Then that item is not taken in income and expenditure count. Generally, general donation is revenue income and taken on the credit side of income and expenditure count. While life membership fees, here we have to take only revenue part of life membership fees, mean part of life member fee which relate to current period only. So life membership fees, you must know what is life membership fees. This is the amount received by not for profit organization from those members who have paid life membership fees to the organization. Only here we have to write that portion which is revenue nature only. By interest on investment, not for profit organization can invest its money in any type bonds, in debentures, or in shares of other companies. So from these are type of investment. From these it can receive certain amount from debentures and fixed deposit. It can receive interest. So that is interest on investment, that is revenue income of not for profit organization. So we have to credit this amount only interest on investment, not investment, but we have to credit only interest on investment. By sale of refreshment. Refreshment, you must know what is refreshment. This is the charges taken by NPO for giving refreshment to its members. So this is generally taken as revenue nature and credited to income and expenditure count. By rent for use of hall, uh, in not for profit organization can let its hall for any purpose for performing function by any person. So it can charge amount for that purpose. तो दैट इज रेंट फॉर यूज़ ऑफ हॉल. अगर हॉल को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन को किसी पर्पज़ के लिए देती हैं तो उसके बदले में पैसे चार्ज करती हैं. तो द अमाउंट सो रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज रेकरिंग इन नेचर, that is revenue income, treated as revenue income and credited to income and expenditure count. By hire of ground. Hire of ground, this is also a revenue income. Not for profit organization अपनी ग्राउंड जो है किसी को लेट आउट कर सकती है, दे सकती है. जैसे कोई मैच खेल सकते हैं तो मैचेस का उसका मतलब कि रेंट लेती है not for profit organization. This amount received by not for profit organization for hire of ground, that's a recurring nature item, and that is treated as revenue income, so it is credited to income and expenditure account. By locker rent. Locker rent, this is the facility provided by not for profit organization to its members to keep their in the valuables in and for that not for profit organization charge some amount. That amount charged by not for profit organization from member for providing locker facility, that is locker rent.
that is type of revenue income, and that is recurring in nature. The annual amount so received that is credited to this income and expenditure account by advertisement in journals, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी से भी कह सकती है कि अब उनके जर्नल्स में कोई एडवर्टाइजमेंट देना चाहता है तो ही कैन गिव एडवर्टाइजमेंट फॉर दैट एडवर्टाइजमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चार्ज सम अमाउंट दैट इज advertisement in journal, that is a type of income for not for profit organization. By grant from governments, जो गवर्नमेंट है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट्स देती हैं. ग्रांट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन इज फॉर जनरल ग्रांट, दैट इज recurring nature grants, and another is for development grant given by government. तो जिस जनरल ग्रांट दैट इज meant for maintenance purpose, तो maintenance grant or grant given, if given by the government, that is treated as revenue income and credited to income and expenditure account. If it is given for particular purpose, for development or for any other purpose, then that is capital item, that is not taken here. We have to take only revenue portion. Then next is sale of tickets. अगर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई फंक्शन कराती है या कोई ऐसा मैचेस करवाती है तो वहाँ पर अपने मेंबर्स को या अदर पर्सन से टिकट के पैसे चार्ज कर सकती है, टिकट लगाकर उससे पैसे चार्ज कर सकती है, क्योंकि इसी से ही ये इनकम आएगी. तो बाई सेल ऑफ टिकट्स, दिस इज रेवेन्यू नेचर आइटम, this is credited to income and expenditure account. By tournament collection, sometime not for profit organization टूर्नामेंट भी करवाती है, उसके बदले में जो भी persons who want to participate in the tournament, they have to pay a certain amount to not for profit organization. Not for profit organization receive this amount from those persons. This is tournament collection. This is recurring nature item. This is credited to income and expenditure account. By sales of newspaper, old newspaper, generally जो discarded newspapers हैं which are not to be used, तो they have to be sold. तो दिस इज ए टाइप ऑफ रेवेन्यू इनकम. सेल करके जो भी पैसा आता है दैट इज रेवेन्यू इनकम, दैट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. बाई सेल ऑफ ग्रास, नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपनी अगर ग्रास बड़ी हो जाती है तो कोई अगर लेना चाहता है तो उसको भी सेल कर सकती है. सेल करके जो भी पैसा आता है दैट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, दैट इज रेकरिंग नेचर आइटम. दिस इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड expenditure account. By deficit, this is the last balancing figure. If expenditure side of income and expenditure account exceed the income side, the difference is deficit. That is just type of loss for not for profit organization. So this is deducted from capital fund. Now we have expenditures in this income and expenditure account items in income and expenditure account. First, salaries oblique wages. Salary and wages, these are the items given by the NPO to its employees or workers who are working in not for profit organization. तो ये this is recurring nature item. Salary oblique wages related to current period only, that is taken as expenditure. If it is amount paid in cash, and if there is an outstanding salary, that is taken for current year only. So this is on the basis of accrual basis of counting. Salary and wages paid on the basis of accrual basis of counting, just like profit and loss count. Now next is rent rates and taxes. रेंट अगर पे करना पड़ता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, और टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, रेट्स पे करने पड़ते हैं, दिस इज ए रेवेन्यू एक्सपेंस. दिस इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो खर्चा होता है रिलेटिंग टू करंट पीरियड ओनली. हेयर वी हैव टू राइट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड
This is printing and stationery relating to current period only. If we have given opening stock of stationery and purchases of stationery and stock at the end of the stationery is given, so we can find out printing and stationery consumed. Opening stock of stationery कितना है, add purchases of stationery माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. इससे हमारा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा जो करंट ईयर में हुआ है, करंट ईयर का है, करंट ईयर को रिलेट करता है, वो निकलता है. दिस इज डेबिट साइड आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. जनरली दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन टू डिटरमाइन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कंज्यूम्ड. Opening stock will be given, purchases of stationery will be given, and closing stock of stationery will be given. From that you can find out printing and stationery consumed. Then next item is postage and telegram. This is the expense for not for profit organization, and this is debited to income and एक्सपेंडिचर अकाउंट्स. ये भी खर्चे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को करने ही पड़ते हैं, तो ये एक रेवेन्यू नेचर का आइटम है, तो जो कि करना ही पड़ता है, रेकरिंग नेचर आइटम है. दिस इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस, दिस इज also recurring nature items relating to current period only, that is taken in the debit side of income and expenditure account. Next item is honorarium. Honorarium, this is the amount paid by NPO to any person not in the in the organization for for enrichment the knowledge of its members or to the member of society. This is honorarium, the amount paid by not-for-profit organization to any person who provide valuable services or who enrich the knowledge, increase the knowledge of its members. For this, this is known as honorarium. So honorarium is treated as expenditure. This is debited to income and expenditure account. Insurance, अगर not for profit organization can have insurance of any of its assets or its employees. So this amount paid to insurance company for this is known as insurance. This is a recurring nature item. This is debited to income and expenditure account. We have to take इंश्योरेंस रिलेटिंग टू करंट पीरियड ओनली. याद रखना है, जैसे पी एंड एल अकाउंट में टू इंश्योरेंस, इफ़ देर इज़ एनी प्री पेड इंश्योरेंस दैट इज़ डिडक्टेड फ्राम दिस. करंट ईयर का प्री पेड है तो टू इंश्योरेंस लेस प्री पेड दैट अमाउंट इज़ टेकन. अगर प्रीवियस ईयर का कोई प्री पेड है तो दैट रिलेट टू करंट ईयर, तो यू हैव टू ऐड टू इंश्योरेंस प्लस prepaid at the beginning, less prepaid at the end. काउंटिंग ईयर के एंड का जो प्रीपेड है उसको लेस करना है, बिगनिंग का प्रीपेड इसमें ऐड करना है. दैट इज़ इंश्योरेंस रिलेटिंग टू करंट पीरियड ओनली. देन वी हैव रिपेयर एंड मेंटेनेंस. ये भी एक एक्सपेंस है जो करना ही पड़ता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को. दैट इज़ ऑफ रेवेन्यू नेचर आइटम रिलेटिंग टू करंट पीरियड ओनली. दिस इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Next item is tournament expense. Tournament expense, this is this can be taken as a recurring nature item. On the other hand, if tournament fund is given, then this item tournament expense is not taken here, but it is deducted from tournament fund on the liability side of balance sheet. On the other hand, if tournament expenses exceed the tournament fund, the excess amount that is debited to income and expenditure account. याद रखना है, टूर्नामेंट एक्सपेंस अगर ये लिखा है पेपर में और टूर्नामेंट फंड इज़ नॉट गिवन, फंड इज़ नॉट क्रिएटेड फॉर दैट पर्पस, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस इज जनरली टेकन एज रेकरिंग आइटम. ये एक्सपेंस लेना है, दिस इज डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. लेकिन इफ़ this is given कि tournament fund is given and tournament expenses are also given, then we have to apply the technique of fund based
अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो है ये एक अकाउंटिंग है जिसमें हर फंड को हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करना है। फंड जो भी टूर्नामेंट फंड है उसको लायबिलिटी साइड में लेना है, जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको टूर्नामेंट फंड में से लेस कर देना है, लेस करके जो अमाउंट आती है वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेनी है। ऑन द अदर हैंड अगर ये नेगेटिव अमाउंट आ जाती है तो इट मीन्स एक्सेस अमाउंट, जो अगर expenses exceed tournament fund, then the excess amount that is debited to income and expenditure account. In that case we have to take tournament expenses on the debit side of income and expenditure account. To meeting expense, ऐसे ही मीटिंग करवाती है नॉट फॉर प्रॉफिटाइजेशन, उसमें भी खर्चे होते हैं, उनको हम डेबिट साइड में लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, क्योंकि दीज आर रेकरिंग आइटम्स और रेवेन्यू नेचर। ऑडिट फीस जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराती है बाय ऑडिट पार्टी, तो उसके बदले में इसको एक फ़ीस देनी पड़ती है, तो दैट इज़ ऑडिट फीस। जो भी अमाउंट फीस देती है कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू द ऑडिट पार्टी, that is a expense, that is an expense for not for profit organization, that is debited to income and expenditure account. To newspaper and periodical, ये भी परचेज करती है, न्यूज़पेपर परचेज करने ही पड़ते हैं, पीरियडिकल्स वगैरह ये परचेज करने पड़ते हैं ताकि जो मेंबर्स हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ें, तो उसके लिए ये खर्चा होता है। दिस इज रेकरिंग नेचर आइटम, ये भी एक तरह का रेवेन्यू नेचर आइटम है जो कि होता ही रहता है। तो इसको काउंटिंग ईयर से जो जितना भी न्यूज़पेपर का खर्चा है जिस ईयर का हम अकाउंट बनाने जा रहे हैं, तो करंट ईयर, दैट इज़ टेकन in newspaper and periodical on the debit side of income and expenditure account. Then we have general and miscellaneous expenses. General expense and miscellaneous expense, if given, they are taken on the debit side of income and expenditure account. Next is depreciation on fixed asset. जो fixed asset हैं वो depreciate होते हैं, तो decrease in the value of asset ड्यू टू वियर एंड टीयर कैसे भी होती है, दैट इज डेप्रीशिएशन। This, if any depreciation is given on the fixed asset, that is treated as just like expenditure for the not for profit organization and taken on the debit side of income and expenditure account. To sport material consumes, स्पोर्ट्स मटेरियल से भी जो हमारी कंजम्पशन होती है उसको हम यहाँ पर लेते हैं। स्पोर्ट्स मटेरियल जो परचेज़ किया, हमारे पास इतना स्पोर्ट्स मटेरियल था, इतनी हमने परचेज़ करी, इतना एंड में बच गया, तो हम स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम निकाल सकते हैं। कैसे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, तो दैट इज़ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड शोन on the debit side of income and expenditure account. फिर last item is to surplus. Surplus, if income side exceed the expenditure side, then the difference amount, that is surplus. Just like profit in case of profit seeking organization, this surplus amount, this is credited to capital fund, means added to the capital fund। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनकी कैपिटल नहीं होती, बल्कि उनके लिए कैपिटल फंड होता है। चाहे सरप्लस हो चाहे डेफिसिट हो, वो कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र होता है। सरप्लस कैपिटल फंड को इंक्रीज़ कर देता है और डेफिसिट कैपिटल फंड को डिक्रीज़ कर देता है। तो इट मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के परफॉर्मे में हमने याद रखना है कि ये कौन से आइटम इसमें आते हैं। तो रेवेन्यू आइटम इसमें लेने हैं हमने जो रिलेटिंग टू करंट पीरियड ओनली। जो पास्ट पीरियड और फ्यूचर पीरियड आइटम आर नॉट टेकन, और ये अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो टेक्निक इसमें अप्लाई होता है। नेक्स्ट हमारा आ गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। नाउ देयर आर सम आइटम्स रिलेटिंग टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। उनमें से सबसे पहला आइटम जो है सब्सक्रिप्शन है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइटम। जनरली आज 3 marks question can be asked from this accounting treatment of this item.
तो इट इज़ ए रेगुलर अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स मेंबर्स एनुअली। ये एक रेगुलर अमाउंट होती है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने मेंबर से रिसीव करती है, लेकिन एनुअली रिसीव करती है ऑन अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इसमें वी हैव फोर। नंबर वन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो सब्सक्रिप्शन हमें मिली है, चाहे वो पास्ट ईयर की हो, चाहे वो करंट ईयर को रिलेट करती हो, चाहे वो फ्यूचर पीरियड की हो, इससे पैसा जो भी काउंटिंग ईयर में पैसा आता है दैट इज़ डेबिटेड टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पैसे आ रहे हैं सब्सक्रिप्शन से, चाहे वो पिछले साल की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे फ्यूचर ईयर की हो, उसको हम यहाँ पर लेते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कौन सी साइड में लेना है? डेबिट साइड में लेना है। सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर should be calculated on the accrual basis and should be credited to income and expenditure account। याद रखना है जो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर को रिलेट करती है उसको हमने एक्रूअल बेसिस पर लेना है और शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड में लेना है? क्रेडिट साइड में लेना है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट। अगर हमारी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है लेकिन एंड ऑफ द करंट ईयर में है तो उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लेना है। कौन सी बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट कह देते हैं। लेकिन अगर यही सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द करंट ईयर दे रखी है तो उसको भी एसेट साइड में लेना है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में लेना है। इट मीन जो लास्ट ईयर है उसकी बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएगी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है ये एक तरह की इनकम है जो आउटस्टैंडिंग है, ये एसेट का काम करती है। अगर बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगी, अगर एंड में आउटस्टैंडिंग है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ये एक तरह की इनकम है जो हमने एडवांस में रिसीव करी है, इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेते हैं। अगर ये बिगनिंग में एडवांस में रिसीव करी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेनी है। अगर एंड ऑफ द करंट ईयर में हमारी ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट या करंट ईयर की जो बैलेंस शीट है उसकी लायबिलिटी साइड में लेना है। इट मीन्स सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एसेट का काम करती है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एक तरह की लायबिलिटी है। अगर हम एडवांस में इनकम लेते हैं तो इनकम है, वो हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब हमारे पास इनकम आउटस्टैंडिंग पड़ी है तो वो एक तरह का एसेट है। लेकिन याद रखना है कि अगर ये बिगनिंग में है तो बिगनिंग में जाएगा एसेट साइड में, अगर एंड में आउटस्टैंडिंग है तो एंड में, एंड वाली बैलेंस शीट जो बनेगी उसकी एसेट साइड में जाएगा। लेकिन अगर रिसीव्ड एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एंड एडवांस है, ये बिगनिंग में है तो ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा। अगर ये एंड में एडवांस में है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाना है। और दिस इज जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। अगेन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। तो इसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की कौन सी साइड में लेते हैं? सब्सक्रिप्शन को जो रिसीव्ड बेस होती है रिसीट एंड पेमेंट, लेकिन दिस इज ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। याद रखना है जो भी पैसा आया है सब्सक्रिप्शन से, चाहे वो पास्ट ईयर का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे फ्यूचर ईयर का हो, उसको हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लेना है ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। लेकिन नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन जो है रिलेटिंग टू करंट ईयर ओनली credited to income and expenditure account on the accrual basis of accounting। इसमें basis of accounting income and expenditure account का क्या है? accrual basis। it mean सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर को रिलेट करती है उसको हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेना है। नेक्स्ट है हमारा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर है
करंट ईयर के एंड में है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी। अगर हमारे ये बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अगर बिगनिंग में एडवांस में रिसीव करी है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। एंड में एडवांस में रिसीव करी है तो दैट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो ये हमें याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वी हैव डोनेशन। तो डोनेशन क्या होती है? एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डोनर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड डोनेशन। कोई भी अमाउंट जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसी डोनर से रिसीव करती है अकाउंटिंग ईयर में उसको हम डोनेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ डोनेशन। डोनेशन दो तरह की होती है, एक जनरल डोनेशन, एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन कौन सी होती है? जनरल डोनेशन वो डोनेशन होती है जिसमें डोनर डज नॉट अटैच एनी कंडीशन फॉर इट्स यूज़। अगर डोनर जो है डोनेशन देते वक्त उसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगाता तो उसको जनरल डोनेशन कहते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन डोनर अटैच कंडीशन फॉर इट्स यूज़। अगर डोनर इसके साथ डोनेशन देते वक्त कंडीशन लगा लेता है कि ये मेरी पैसे जो मैं दे रहा हूँ, ये जो डोनेशन दे रहा हूँ, ये बिल्डिंग के लिए है, इसके लिए मेरे नाम का एक कमरा बना दिया जाए, तो उसको हम स्पेसिफिक डोनेशन कह सकते हैं। जहाँ अगर डोनर कह देता है कि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्राइस फंड के लिए मैं दे रहा हूँ, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो है दैट इज़ प्राइस फंड कैन बिकम द स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन जो है दैट इज़ रेवेन्यू नेचर आइटम एंड दैट इज़ टेकन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर जो स्पेसिफिक डोनेशन है ये कैपिटल आइटम होता है, इसका नेचर जो है कैपिटल नेचर का आइटम है, इसको बैलेंस शीट में लेते हैं लायबिलिटी साइड में, याद रखना है। लेकिन ये दोनों ही तरीक़ों से डोनेशन चाहे जनरल है चाहे वो स्पेसिफिक डोनेशन है उसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की सारी अमाउंट जो है डेबिट साइड में लेते हैं। इससे पैसा आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लेते हैं। जनरल डोनेशन को हम जनरली रेकरिंग नेचर का आइटम लेकर चलते हैं। ये रेवेन्यू आइटम लेते हैं इसको। अगर कंडीशन कोई अटैच नहीं करी तो ये मान कर चलते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशनें मिलती ही रहती हैं, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेते हैं। और स्पेसिफिक डोनेशन जो है उसको हम कैपिटल आइटम मान कर चलते हैं। अगर डोनर ने ये कंडीशन लगा दी कि ये मैं डोनेशन इस पर्पज़ के लिए दे रहा हूँ, तो स्पेसिफिक डोनेशन जो है दैट इज़ शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लेकिन ये दोनों ही तरह की डोनेशनें चाहे वो जनरल है चाहे वो स्पेसिफिक है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लेते हैं। Again, we have accounting treatment of donation. All donation received shown on the debit side of receipt and payment account. याद रखना है कोई भी डोनेशन जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिल रही है ऑन द कैश बेसिस उसको हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लेना है, चाहे वो स्पेसिफिक डोनेशन हो चाहे वो जनरल डोनेशन हो। General donation received by NPO is treated as revenue receipt and should be credited to income and expenditure account. जो जनरल डोनेशन है उसको हमने रेवेन्यू रिसीट मान कर चलना है और उसको क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। देन वी हैव स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव्ड बाय एनपीओ not for profit organization is treated as capital receipt and should be shown on the liability side of balance sheet. तो it means अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में मेनली हमने 3 आइटम याद रखने हैं। जो भी डोनेशनों से पैसा आता है चाहे वो जनरल हो चाहे वो स्पेसिफिक हो, जो भी पैसा आ रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेना है डेबिट साइड में। और जनरल डोनेशन जो है उसको रेवेन्यू आइटम ट्रीट करते हुए उसको रेवेन्यू रिसीट मानते हुए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेना है। लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको कैपिटल रिसीट कहते हैं, तो इसको हमने बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेना है। देन वी हैव नेक्स्ट आइटम
that is very important item, life membership fees. It is the lump sum amount received by not for profit organization from its member. अगर सारे के सारे इकट्ठे ही अमाउंट कोई मेंबर पे कर देता है तो वो लाइफ मेंबरशिप फीस है। अगर मेंबर सब्सक्रिप्शन के पैसे सारे के सारे इकट्ठे पे कर देता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, अगर अलाउ करती है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है लाइफ मेंबरशिप फीस की? जो टोटल लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। जो टोटल लाइफ मेंबरशिप फीस से पैसा आता है उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लेते हैं। और सेकंड, टोटल लाइफ मेंबरशिप रिसीव्ड शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट एंड शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो टोटल लाइफ मेंबरशिप फीस है उसको कैपिटल रिसीट मानकर चलते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेते हैं। अगर ये स्पेशल लिखा है कि इतनी हमने इसको और रेवेन्यू मानना है तो वो पोर्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले सकते हैं। अगर हमारी लाइफ मेंबरशिप फीस में लिखा है कि 10% लाइफ मेंबरशिप जो है वो रेवेन्यू नेचर की है, वो करंट ईयर को रिलेट करती है, तो हम ये ले सकते हैं। देन दिस कैन बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नो नेक्स्ट item is legacy. Legacy, it is the amount received by not for profit organization under a will on the death of a person is called legacy. Legacy क्या चीज़ है? ये एक अमाउंट है जो कोई डोनर अपने वसीयतनामे में लिख कर जाता है कि उसकी डेथ के बाद ये पैसे गुरुद्वारे को दिए जाएं, मंदिर को दिए जाएं या किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाएं, तो दिस इज़ नोन एज लीगेसी। तो ये लीगेसी क्या चीज़ है? ये अमाउंट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर ए बिल में वसीयतनामे के मुताबिक अगर किसी ने लिखा है वसीयतनामे में कि ये उसके मरने के बाद ये पैसा गुरुद्वारे को दिया जाए, गुरुद्वारा एक तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज नोन एज लीगेसी। लीगेसी की काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी? इट इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लीगेसी जो है ये एक तरह का कैपिटल नेचर का आइटम है। इससे जो पैसा आता है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लेते हैं और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लेते हैं। तो ये लीगेसी की काउंटिंग ट्रीटमेंट। नेक्स्ट वी हैव एंट्रेंस फीस ऑब्लिक एडमिशन फीस। Entrance fees oblique admission fees. It is the amount received by not-for-profit organization at the time of entry of new member. ये एक अमाउंट है जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करती है एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ न्यू मेंबर। जनरली इन केस ऑफ स्कूल्स, जब स्कूल में बच्चे दाखिल होते हैं, +1 क्लास में दाखिल होते हैं, तो उनसे एडमिशन फ़ीस ली जाती है। तो ये एक तरह की हमारी एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस, ये दो तरह की, दोनों ही ट्रीटमेंट इसको दे सकते हैं। इट कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू। अगर ये रेकरिंग नेचर का आइटम है तो रेवेन्यू हो गई। अगर ये कभी कभी मिलती है तो देन दिस कैन बी ए कैपिटल नेचर आइटम आल्सो। जनरली एंट्रेंस फीस ऑब्लिक एडमिशन फीस इज टेकन एज रेवेन्यू आइटम। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, first it is shown on the debit side of receipt and payment account and credit side of income and expenditure account in the absence of instruction of its use. अगर ये कुछ नहीं लिखा हुआ कि कितनी ये कैपिटलाइज है, इसको कैसे यूज़ करना है, तो हम इससे जो पैसा आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लेते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के कंसेप्ट से, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेते हैं क्योंकि इट इज़ ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। क्योंकि एडमिशन फीस बच्चों से लेते ही रहते हैं तो ये रेकरिंग नेचर का आइटम है, तो ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेते हैं अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी। इफ़ दिस इज गिवन, इफ़ इन द इंस्ट्रक्शन दिस इज गिवन, इफ 40% ऑफ एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड, देन 60% जो है उसको रेवेन्यू मानकर चलेंगे, और रेवेन्यू पार्ट दैट इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो 40% है दैट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ
बैलेंस शीट दैट कैन बी एडिड टू कैपिटल फंड आल्सो, इसको कैपिटल फंड में प्लस कर सकते हैं। तो ये हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है किसकी, एंट्रेंस फीस। अगेन एंट्रेंस फीस, दिस इज द अमाउंट received by not for profit organization at the time of the entry of new member। अगर कोई नया मेंबर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करता है तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उससे कुछ पैसे लेती है, इसको हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। जो भी टोटल पैसे आते हैं दिस इज एंट्रेंस फीस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसको हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में लेते हैं ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेते हैं। अगर ये इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है फॉर इट्स यूज़ पे कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो हम इसको सारी अमाउंट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ इन द क्वेश्चन दिस इज रिटर्न कि 40% ऑफ एंट्रेंस फीस दैट इज कैपिटलाइज, 60% ऑफ एंट्रेंस फीस जो है उसको रेवेन्यू नेचर का मानकर चलना है। मान लो 1000 रुपीज़ है, एंट्रेंस फीस से 1000 रुपीज़ मिले और 40% क्वेश्चन में लिखा है कि कैपिटलाइज है, तो इट मीन 400 जो है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लेंगे और 600 जो है रेवेन्यू नेचर के होंगे, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाई एंट्रेंस फीस। लेकिन जो पैसा टोटल आया हमारा 1000, उसको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में 1000 ही लेंगे। अगर 40% हमारी एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज है, मान लो 1000 एंट्रेंस फीस से पैसे आते हैं, लेकिन पेपर सेटर ने ये लिख दिया कि 40% इज़ टू बी कैपिटलाइज्ड, तो हमने 400 जो है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लेनी है और 600 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड में लेने हैं। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में 1000 ही लेने हैं, क्योंकि टोटल पैसे जो आए हैं वो 1000 हैं। नेक्स्ट इज honorarium item. This is also an important item of not-for-profit organization. It is the amount paid by not-for-profit organization to any person other than an employee of not-for-profit organization who provide valuable service